A very pleasant morning to all my lovely students. So again we are the chapter number 4 in the history, the Mughal Empire. Fine, in the previous section we have discussed about the Delhi Sultanate. Fine, now the end of the Delhi Sultanate, which dynasty came in India? It was the Mughal dynasty. Now first I will explain the terms. What is the meaning of dynasty? Fine. Dynasty means a series of rulers which belonging to same family. Fine. So remember this. Now our topic of the Mughal dynasty. Fine. So Mughal dynasty, I will explain all chapter according to your book. So keep your book with you. First I am explaining the introduction part. Fine. So what was the rulers and how we will get the information about this dynasty. First I will explain about the Abul Fazl. Fine. It is one of the great writers who written the Ain-e-Akbari. A book written by the Abul Fazl, which name is Ain-e-Akbari. Fine. He described the life of Akbar. In this book, he described the life of the Akbar, what he did and what was the achievement, what is the administrative process, all things written in the Ain-e-Akbari. And main sources of the Akbar's administrative system. Two main sources have which that tells us the Akbar administrative part. We will get the information about the Ain-e-Akbari, which was written by the Abul Fazl. So keep remember this point. Ain-e-Akbari was the main sources to knowing about the Akbar's life. Fine. So before the starting chapter, I will explain what was the rulers of the Mughal dynasty. So first ruler of the Mughal dynasty was the Babur. Fine. So first ruler is known as founder. Fine. I told you first ruler जो होता है वो founder होता है. So who was the founder of the Mughal dynasty? Was the Babur. Now second ruler of this dynasty, he was the son of the Babur. So Babur's son was the Humayun. Fine. Timeline we will discuss later. And Humayun's son was the Akbar. Now he is a great ruler. ठीक है? He is a great ruler. हर एक dynasty में famous और great ruler होता है. So Akbar was the greatest ruler of this dynasty. Fine. After the Akbar, Jahangir took the throne. And after the Jahangir, Shah Jahan, he was the son of Jahangir. And last, Shah Jahan has the 4 sons. And last powerful Mughal ruler was Aurangzeb. Fine. So in this chapter, we are going to know about the all rulers, what they did, how they captured the India, what battles they have fought, what the administrative rulers were there, what was the social life change in India. So all things we will discuss in this chapter. So again I am repeating all names. First ruler was Babur, second was Humayun, then third is Akbar, fourth is Jahangir, fifth is Shah Jahan, and sixth is Aurangzeb. So keep your book with you. I am explaining all chapters according to your book. Fine student? So students, let's start the chapter number 20. Chapter number 4 from history, the Mughal Empire. Fine. So earlier I have explained the main ruler of the Mughal dynasty, Babur, Humayun, Akbar, Jahangir. Fine. So we have discussed about these all rulers. Remember this point. These are the Mughal dynasty rulers. Fine. And about Abul Fazl, I have explained. He wrote the Ain-e-Akbari. Fine. He written the Ain-e-Akbari. And it is the main reliable resources for knowing about the information about the Akbar administration power. Fine. So next topic I am explaining from the Mughal dynasty is the
मुगल डायनेस्टी एंड सेंट्री की कहाँ से जनरेट हुआ. नाउ अकॉर्डिंग टू योर बुक आई एम एक्सप्लेनिंग, सो कीप दैट माइंड ऑल थिंग्स. द मुगल ट्रेस देयर लाइनेज यानी वो किस वंश के थे, टू द जंगीज खान ऑन देयर मदर साइड एंड तैमूर ऑन देयर फादर साइड. यानी उसके जो वंशज थे, मदर और फादर दोनों ही एक ऐसे लेजेंसी, ऐसे वंश से रिलेटेड थे जो बहुत ही पावरफुल डायनेस्टीज थी, चाहे वो जंगीज़ खान थे, चाहे वो थे हमारे तैमूर्स के वंशज थे. जंगीज़ खान वाज द मंगोल रूलर पार्ट ऑफ द चाइना एंड सेंट्रल एशिया. जो जंगीज़ खान था वो मंगोल रूलर था जो चाइना और सेंट्रल एशिया में जिसका पावर था 12 एंड 13 सेंचुरी. फाइन. हिज मेमोरी वाज एसोसिएट विद द लार्ज स्केल मर्सीरस. मर्सीरस का मतलब होता है कत्लेआम. ठीक है, कत्लेआम यानी कि ये ऐसी डायनेस्टीज थी जो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिव थी और जिन्होंने अपने पास्ट में कई लोगों को मारा भी था. तो मर्सीरस का मतलब यहाँ पर यही है जो बहुत ही टेरिबल थी. द मंगोल रेफर्स टू प्राउडली अनाउंस देयर connection with the Taimur who had captured दिल्ली in 1398. और वो बहुत ही अपने आप को जो थे जो तैमूर वंशज थे वो अपने आप को बहुत ही प्राउडली ये बताते थे कि वो किसके एसेंडर्स हैं, किसके उनके एसेंडर्स कौन हैं, तैमूर डायनेस्टी. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट द बाबर. फाइन. So Babur, it provenance of the Fargana in the years 1494. It is the line of Babur. When I was 12 year old, only जब वो कितने years के थे, only 12 year old, I become the king. वो राजा बने. These words are ओपनिंग लाइन्स ऑफ द ऑटोबायोग्राफी बाबर नामा. ये ऑटोबायोग्राफी थी. ऑटोबायोग्राफी बोलते आत्मकथा को, ठीक है, जो अपने बारे में लिखी जाती है. बाबरनामा ऑफ द तुजुके बाबरी रिटन बाय द फाउंडर ऑफ मुगल एम्परर इन द जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर. इसका पूरा नाम क्या है? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर. फाइन. ये उसकी यहाँ पे पिक्चर दे रखी है, इसको ध्यान से देखेंगे आप. ये बाबर है ना. एज अ रूलर ऑफ द फरगना रीजन्स रफली इन प्रेजेंट डे उज़्बेकिस्तान. जो प्रेजेंट डे उज़्बेकिस्तान है वहाँ पर इनका रूल था. बाबर हैड टू डिफाइन हिज किंगडम्स अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेजन. हालांकि इनका रूल इतना बड़ा नहीं था उस वक्त, लेकिन ही कैप्चर द काबुल. उन्होंने किसको कैप्चर किया? काबुल. इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान. जो प्रेजेंट डे कहाँ पर है? अफगानिस्तान में. इन 1504 सी विच टर्न मेड हिम अवेयर टू इंडिया फैबुलस वेल्थ. अब जब वो काबुल पे उसने अटैक किया या काबुल को कैप्चर किया, वहीं पर उन्होंने इंडिया की वेल्थ के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुन रखी थी. यानी इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेल्थ है, बहुत ज़्यादा मनी है. नाउ यहाँ पे साइड में पैराग्राफ है आपका. अट्रैक्टिंग बाय द वेल्थ. ठीक है, अट्रैक्टिंग बाय द वेल्थ ही प्लान एंड द एक्सपेंडिशंस टू इंडिया. अब उससे अट्रैक्ट होकर वेल्थ से उसने सोचा कि वो इंडिया पे अपना क्या करेगा? रूल करेगा. इन 1524 दौलत खान लोधी. हमने दिल्ली डायनेस्टी की थी बच्चों. दिल्ली डायनेस्टी में लास्ट जो डायनेस्टी थी वो थी लोधी सैयद डायनेस्टी. तो जो दौलत खान लोधी इज पावरफुल अफगान गवर्नर ऑफ पंजाब आस्क्ड बाबर टू हेल्प द डिफेट द इब्राहिम लोधी टू सुल्तान ऑफ दिल्ली. उसने उसकी हेल्प मांगी बाबर की इब्राहिम लोधी को हराने में. देन बाबर डिफेट इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526. और फर्स्ट बैटल हुआ पानीपत का, याद रखेंगे. फर्स्ट बैटल हुआ था बिटवीन द बाबर एंड द इब्राहिम लोधी. फाइन. कब हुआ था? 1526 में. इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द कंसोलिडेट द एम्पायर, Babur defeated the following ruler within the period of 4 years. अब यहाँ पर उसने 4 साल तक यहाँ पर रूल किया. इसमें कुछ ये नाम है कि कौन कौन से एरिया थे. राणा सांगा रूलर ऑफ मेवाड़ इन द बैटल ऑफ खानवा इन 1527. यानी एक एक करके उसने डिफेट किया, लोगों को हराया. हेल्प टू इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द नॉर्थन इंडिया. ही कंक्वायर द फोर्ट ऑफ ग्वालियर, मेवात एंड धौलपुर. इस एरिया को भी किया उसने कंट्रोल. देन ही एक्सटेंड द यूज़ पार्ट ऑफ द अलवर फ्रॉम द हुसैन खान मेवाती. यहाँ पर भी जो है उसने रूल किया. इसके बाद ही लेड द कैंपेन अगेंस्ट द
Madini Roy Chanderi in Malwa and combined force of Afghan and Sultan of the Bengal and bank of the river Ganga. यानी उसने अपने एम्पायर को क्या किया, एक्सटेंड किया. फाइन. देन अब इसके बाद जो है, इसकी डेथ के बाद जो है रूल होता है किसका, हुमायूं का. ठीक है, ये हुमायूं के बारे में है आपकी बुक में. फाइन. तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. नसरुद्दीन मोहम्मद, इसका पूरा नाम क्या था, नसरुद्दीन मोहम्मद, बेटर नोन द हुमायूं, जिससे हुमायूं के नाम से भी जाना जाता है. हिज फादर इज एज एम्परर इन द 1530. अब यहाँ पे 1530 में जब बाबर की डेथ हो जाती है तो उसे राजा बनाया जाता है. ऑल्दो द मीनिंग ऑफ हुमायूं वॉज द फॉर्चुनेट, ही लीड द extremely turbulent life. He faced the series of problems after the ascending the throne. जैसे ही इसे थ्रोन मिला, सिंहासन मिला, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्या करना पड़ा, फेस करना पड़ा. Then Humayun leader faced to hostility of the Afghan lead by the Sher Shah Suri and Bahadur Shah Jafar, the ruler of गुजरात. अब उसे यहाँ पे दो जो मेन पावरफुल जो रूलर थे उसके साथ मुकाबला करना था. फर्स्ट था अफ़गान रूलर शेर शाह सूरी एंड सेकंड था बहादुर शाह. ये दोनों जो थे उसके अगेंस्ट थे. यहाँ पर देखिए इसका नाम दे रखा है दोनों का ही. ठीक है. देन हुमायूं वॉज इनिशियली सक्सेस अगेंस्ट द बोथ ऑफ देम. बहादुर शाह सून रिस्टेड बेग गुजरात, दोनों को उसने डिफीट भी किया सक्सेसफुली. इसके बाद शेर शाह सूरी डिफीट हुमायूं. अब यहाँ पे शेर शाह सूरी जो है उसने हुमायूं को हराया चौसा एंड कन्नौज इन 1539 CE एंड 1540 CE रिस्पेक्टिवली. यानी दो ही इसके साथ वॉर हुए, दोनों में ही उस बैटल में उसने हराया. यानी हुमायूं की यहाँ पे क्या हुई, हार हुई. दिस डिफीट फोर्स हुमायूं टू काबुल. इस डिफीट के बाद वो वापस काबुल चला गया. एंड पर्सिया ईरान वेयर टुक शेल्टर अंडर द शफीविश खान, जहाँ उन्होंने शरण ली सफीश खान के पास. Now शेर शाह सूरी died in 1545. अब यहाँ पे 1545 में शेर शाह सूरी की डेथ हो जाती है. एंड इज सक्सेसर्स प्रोवर्ड द वीक एंड इनकम्पिटेंट, यानी उसका जो ऐसा कोई भी रूलर नहीं था जो उसके बाद उसकी जो रूल है उसको चला पाए. सारे ही वीक थे. एंड दे वर अनेबल टू सस्टेन हिज एम्पायर, जो उसके एम्पायर को चला नहीं पा रहे थे. यहाँ देखिए, they were not unable to sustain his empire. Taking the advantage of this situation, इस situation का advantage वापस हुमायूं ने लिया. हुमायूं recaptured दिल्ली and आगरा in 1555. अब 1555 में फिर से उसने क्या किया, इसे recapture कर लिया और रीस्टेब्लिश द मुगल रूलर. यानी कुछ टाइम के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन था, रूलर का एम्पायर जो था ख़त्म हुआ था, लेकिन उसे फिर से गेन कर लिया गया. हाउएवर हिज विक्ट्री वाज शॉर्ट लिव्ड, डाइड इन 1556. उसकी जो विक्ट्री थी बहुत कम टाइम के लिए थी और 1556 में उसकी डेथ हो गई ड्यू टू इंजरी कॉजेज टू द फेल डाउन टू द स्टेयर्स ऑफ द लाइब्रेरी. ऐसा कहा जाता है लाइब्रेरी की स्टेयर्स से उतरते वक्त उसकी जो क्या हो गई, डेथ हो गई थी. फाइन. सो ये हमने पढ़ा अबाउट द बाबर हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मुगल डायनेस्टी एंड आफ्टर द Humayun. Fine. Now the famous ruler of this dynasty was Akbar. Now next chapter I will explain about the Akbar. इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें. He ruled from the 1556 to 1605. Fine. It was Akbar. In next lecture I will explain you. So remember this point. The series of ruler, हमको यहाँ पे याद रखना है कि कौन कौन से रूलर थे. फर्स्ट पेज में आपके सारी चीज़ें दे रखी है. यहाँ देखिए, ये रहा फर्स्ट पेज आपका बुक का कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर. इसके बाद है शेर शाह सूरी, औरंगजेब. मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लास्ट में करेंगे. आईन अकबरी क्या थी, किसने लिखी थी, अबुल फजल ने. क्या सोर्सेज है इसका, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है अकबर का उसको जानने का ये क्या है, मेन सोर्सेज है. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द मुग़ल
एंसिटरी कि किस के वंशज थे। यहाँ पर दो चीज़ें आपको याद रखनी है, जंगीज़ खान ऑन द मदर साइड, ये हम बात कर रहे हैं मुगल डायनेस्टी के रूलर की, वो किससे रिलेटेड थे, जंगीज़ खान ऑन देयर मदर साइड एंड तैमूर ऑन द फादर साइड, है मंगोल रूलर्स के वो थे, वंशज थे वो लोग। फाइन। इसके बाद हमने किया बाबर ने, किस तरह से बाबर ने दिल्ली पर कैप्चर किया, यहाँ की वेल्थ जो थी, वेल्थ से यानी कि बहुत अट्रैक्ट हुआ, और यहाँ पर उसे 1524 में दौलत खां लोधी ने उसे इनवाइट किया कि वो उसकी हेल्प करे, और उसने जो बैटल लड़ा, इसको ध्यान रखना है, रिमेंबर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाय द बाबर, किस किस के बीच में हुआ था, बाबर एंड इब्राहिम लोधी। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द हुमायूं। हुमायूं का रूल बहुत शॉर्ट टाइम के लिए था। इसने जो चौसा एंड कन्नौज का जो बैटल हुआ था 39 एंड 40, इसमें डिफेट हो गया, वापस काबुल लौट गया। लेकिन जब शेरशाह सूरी की डेथ हुई 45 में, यानी कि जस्ट 5 साल के बाद, उसने अपने जो एम्पायर को रीस्टेब्लिश किया, मुगल एम्पायर को। फाइन। सो कीप रिमेंबर ऑल पॉइंट। आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट टॉपिक अकबर इन योर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।